بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخر الاسبات مولا العتاقہ. آخری اسبہ جو ہے وہ آزاد کرنے والا مولا ہے، آزاد کرنے والا آقا. یہ آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہو ہے نا، کہ آزاد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ ہو تو اسے ملتا ہے. ثم اسبتہ علی الترتیب، پھر اس کے اسبا علی الترتیب الذی ذکرنا، جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا باپ والی صورت میں ہے نا، اسی ترتیب پر. لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب. ولا بھی ایک طرح کی قرابت داری ہے جیسے کہ نسب قرابت داری ہے، یعنی جیسے نسب سے قرابت ہے اسی طرح ولا سے بھی قرابت ہے. سمجھ گئے؟ یہ صورتحال ہے. یہ دلیل مولا العتاقہ کے اسباب بننے کے لیے ہے. لقوله علیہ السلام ولا شیء للاناث من ورثۃ الموثق. تو پتہ چلا کہ مولا جو ہوتا ہے آزاد کرنے والا وہ اسبہ بنتا ہے. پہلے اسی کو سمجھ لو وہ کیسے اسبہ بنے گا. زید نے بکر کو آزاد کر دیا تو زید ہوا موثق، بکر ہوا موثق ہے نا. اب بکر آزاد ہونے کے بعد کمایا، دولت جمع کیا، مر گیا. اب آزاد کی دولت تو اس کی اپنی نہ ہوگی. غلامی کی حالت میں کماتا تو آقا کو ملتا، لیکن آزادی کے حالت میں کما رہا ہے تو ایسی صورت میں گویا اس کی دولت اسے ملے گی. جب اس کی دولت کی ملکیت اسی کے حوالے ہوگی تو ایسی صورت میں گویا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کو اس میں حصہ ملے گا. وارثین میں کوئی نہیں ہے تو کس کو حصہ دیا جائے گا؟ تو کہتے زید جو موثق تھا اسے ملے گا. یہ زید جو موثق ہے اس کو کس حیثیت سے مل رہا ہے؟ اسبہ ہونے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اسبہ ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال، اسبہ کا جو ضابطہ ہے اس کا مطلب ہے کہ زید کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے کو دیا جائے گا، ورنہ اس کے باپ کو دیا جائے گا، ورنہ پھر اس کے بھائی کو دیا جائے گا، ورنہ پھر اس کے چچا کو دیا جائے گا. یہ چار صورتیں ہیں نا. یعنی بیٹے کو دیا جائے گا نیچے تک، کوئی موجود نہ ہو تو باپ کو دیا جائے گا اوپر تک، یہ بھی کوئی موجود نہ ہو تو بھائی کو دیا جائے گا اس کے بغل سے نیچے تک، بھتیجا تک، یہ بھی موجود نہ ہو تو چچا کو دیا جائے گا. یہ طریقہ تھا. ٹھیک ہے. پھر اسباب میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی کے ساتھ بہن بھی اسبہ بن جاتی ہے. اسباب میں ہم نے دیکھا تھا بیٹی کے ساتھ بہن اسبہ بن جاتی ہے. تو یہ تمام صورتیں یہاں چلیں گی کہ نہیں چلیں گی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جی. یہ تمام صورتیں چلنے، یہ تمام صورتیں کب چل سکتی ہیں اس پر توجہ دو. زید جو موثق ہے جس کو اس نے آزاد کیا، جو کمایا، اس کے انتقال کے بعد اس کا سارا مال کس کو ملے گا؟ زید کو ملے گا. یہ کنفرم ہے. اتفاق یہ ہے کہ جب وہ غلام آزاد شدہ مر رہا ہے اس وقت یہ جو زید موثق ہے یہ بھی مر چکا ہے اس سے پہلے. تو اس سے پہلے جب یہ مر چکا ہے تو اب اور اس کا کوئی نہیں ہے، کس کا؟ غلام کا کوئی نہیں ہے، آزاد شدہ کا. جب کوئی نہیں ہے اس موثق کا تو اس کا وارث ہوتا کون؟ اسبہ ہونے کے اعتبار سے موثق موجود نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟
تب اب اس موتق کو میت کے درجے میں رکھ لیں گے، موتق کو میت کے درجے میں رکھیں گے، اور جیسے میت کے اسبات کا ترتیب ہے ویسے ہی ترتیب یہاں چلے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ موتق کے مرنے کے بعد اس کا اسبا موتق کا بیٹا ہوگا، پوتا ہوگا، باپ ہوگا، دادا ہوگا، بھائی ہوگا، چچا ہوگا، سمجھے؟ یہی سب سسٹم اس میں چلے گا۔ فرق صرف کتنا ہوا کہ اگر خود موتق موجود ہو تو کچھ نہیں دیکھنا ہے، موتق موجود نہ ہو تو اس کے جو اسبات ہیں، جو ترتیب اس کے اسبات میں ہے، اسی ترتیب کا لحاظ کر کے کام کرنا ہے۔ سمجھ گئے پوری بات؟ جی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ موتق نسب کے جو اسبات ہیں ان میں عورتیں بھی اسبا بنتی ہیں، ہے نا؟ اس میں بنے گی کہ نہیں؟ مولا العتاقہ میں بنے گی کہ نہیں؟ ہے نا؟ مثال کیا بنے گی؟ موتق کے مرنے کے وقت میں موتق کا بیٹا موجود ہے اور بیٹی موجود ہے، تو عام حالات میں للذکر مثل حظ الانثیین ہوتا ہے نا، یہاں پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھے؟ اس کو واضح کرتے ہیں وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوتِقِ، اور موتق کے وارثین میں سے جو عورتیں ہیں نا ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھے؟ تو اب فرق کیا پڑا؟ زید مرتا خود موتق، خود مرتا، اس کا بیٹا بیٹی دونوں موجود ہوتے، للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے دونوں اسبا بن جاتے، لیکن یہاں زید کا آزاد کیا ہوا غلام مر رہا ہے، تو اب اس کی وراثت، اس کا جو مال ہے وہ موتق کے بیٹے اور بیٹی دونوں کی موجودگی میں صرف بیٹے کو ملے گا، بیٹی کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ عورتوں کو ولا میں سے حصہ نہیں ملتا ہے نا، مولا ولائے عتاقہ میں سے اس کو حصہ، دلیل قتل قولہ علیہ السلام، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے لیس للنساء من الولا، عورتوں کو ولا نہیں ہے، ولا میں سے عورتوں کا کچھ حق نہیں ہے۔ ہاں اب ایک مسئلہ ہے، بیچ میں روک رہا ہوں، اب ایک مسئلہ ہے، زید کسی عورت کا غلام تھا، اسی عورت نے اس کو آزاد کیا ہے، سمجھے؟ اور وہ مر گیا زید آزاد ہونے کے بعد کچھ دولت کما کے، کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، تو اب اس کا مال کس کو ملے گا؟ کیونکہ اب مولا العتاقہ اس کی کون تھی؟ عورت ہوئی، تو کہتے اب اس کو ملے گا۔ پتہ کیا چلا؟ صراحتاً عورت اگر مالک ہے تو ولا کا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر عورت کے علاوہ کوئی اور مالک تھا تو اس کے واسطے سے ولا اس تک نہیں پہنچے گا، سمجھ گئے نا؟ اسی کو کہا الا ما اعتقنا، مگر وہ جس کو وہ آزاد کرے، او اعتق من اعتقنا، یا آزاد کرے وہ جس کو انہوں نے آزاد کیا۔ ایک کڑی اور بڑھا لو نا، ہندا نے آزاد کیا زید کو، زید کمایا، ایک غلام خریدا، غلام خریدنے کے بعد اس نے بھی غلام کو آزاد کر دیا، وہ غلام کما کے دولت کما کے جمع کیا، اب وہ غلام مر رہا ہے، اس کے مرنے کے وقت میں زید موجود نہیں ہے، یہ ہندا موجود ہے، تو اب زید کے آزاد شدہ غلام کا مال زید کی مالکہ جو ثابت تھی ہندا، اس کو ملے گا۔ آتقا من آتقنا، سمجھ گئے نا؟ او آتقا من آتقنا، اسی پر سب سمجھتے جا۔ او کاتبنا، یہ جس کو انہوں نے مکاتب بنایا خود، او کاتب من کاتبنا، یہ جس کو مکاتب بنایا، تو سمجھے؟ جس کو اس نے مکاتب بنایا اور وہ آزاد ہوا ہے نا۔ دبرنا، یہ جن کو انہیں مدبر بنایا، یا وہ دبر من دبرنا، یا ان کے آزاد کردہ نے مدبر بنایا۔ او جر ولا ان معتقہن، یا ان کا معتق ولا کھینچ لائے۔ پڑھے ہو مولا الموالات؟ ذہن میں ہے نا؟ تو وہی صورت ہے کہ ان کا زید کو ہندا نے آزاد کیا، زید کی پراپرٹی ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی آدمی اس کے ساتھ رشتہ ولا قائم کر لے، کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، سمجھے؟ تو اب اس کے مرنے کے بعد سارا مال زید کو ملے گا،
इत्तेफाक से उसके मरने के वक्त में जैद खुद मौजूद नहीं है, तो वह जैद ने उसका वाला खींच करके कहाँ पहुँचा दिया, अपनी मालिका तक पहुँचा दिया, समझे। और जर्रा वाला मोतको मुन्ना और मोतको मोतक हो गई बात पूरी। वाला तरका अबल मोतिक व इब्नहु, अब गोया ज़ाब्ते के मुताबिक क्या चलेगा, ज़ाब्ते के मुताबिक ये चलेगा कि जैद के मसला पीछे की तरफ जा रहा है ना, कि वाला मौला लताका को मिलेगा या उसके वारिसीन को मिलेगा। मौला लताका मौजूद ना हो तो वारिसीन में कौन सा तरीका चलता है, बेटा माने जो वरासत जो असबात में चल रहा है, नस्ली असबात में, कि पहले बेटा होता इस तरह, फिर बाप दादा इस तरह, है ना, ये चल रहा था ना। उसी तौर पर यहाँ होगा क्या कि पहले बेटा फिर बाप, इस तरीके से। इसमें इमाम अबू यूसुफ का एक कौल है, उस कौल को जिक्र कर रहे हैं। कहते वलो तरका अबल मोतिक व इब्नहु, अगर कोई आज़ाद करने वाले का बाप छोड़े और बेटा छोड़े, क्या मतलब हुआ, जैद मरा, इसका मोतिक भी मर चुका है, लेकिन मोतिक का बाप जिंदा है और मोतिक का बेटा जिंदा है, दोनों जिंदा है ना, ये दादा पोता, ये दोनों जिंदा है, ठीक है। तो आप कैसे तकसीम करेंगे, ज़ाब्ता उमूमी बता चुके हैं कि बेटे को मिलेगा, मोतिक के बाप को कुछ नहीं मिलेगा। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैद का मोतिक खुद मर रहा था, जब उस वक्त उसका बाप और उसका बेटा मौजूद था। गौर करना, जैद का मोतिक खुद मर रहा था तो बाप और बेटा दोनों मौजूद थे, उसके हिस्सा कैसे दिया था आपने, बाप के हालात याद हैं क्या, बाप को औलाद की मौजूदगी में उसको सुदुस मिलता है, बेटों की मौजूदगी में, क्या याद करो ना, 3 हालात हैं उसके, है ना। बाप के हालात 3 हैं, असबा माँ सुदुस, सुदुस और असबा। असबा माँ सुदुस बेटी की मौजूदगी में, पोते की मौजूदगी में, सुदुस बेटे पोते की मौजूदगी में, असबा इन सब के अपने मौजूदगी में। तो ये कब याद करोगे, ये याद नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर घर ही रहो, समझे। हालात अगर याद नहीं हो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ जलसों की तरह तकरीर सुनोगे और चले जाओगे। अगर कुछ हासिल करना है हालात को पक्का रखो, ज़ुबान पर होना चाहिए, समझे। अब तक नहीं याद किया, कितना गैप हुआ। तो वो कहते हैं कि अगर मोती खुद मर रहा था और बाप और बेटा मौजूद था तो बाप को सुदुस मिल रहा था, है ना, और बेटे असबा बन रहा था। तो यहाँ पर भी जब मोतिक जैद मर रहा है तो इसका माल भी मोतिक के बाप को सुदुस के तौर पर मिलेगा और मोतिक के बेटे को असबा तौर पर मिलेगा, समझे। क्योंकि उस ये माल तो मोतिक का माना गया। अब मोतिक का माल जब माना गया तो ऐसी सूरत में मोतिक में जो सिस्टम चलता कि बाप को सुदुस बेटे को असबा, उसी तौर पर रहेगा यहाँ, है ना। बाप महरूम तो नहीं होता है, समझ में आ रही बात करिए। उसी को कहते हैं वलो तरह का अबल मोतिक, अगर मोतिक का बाप और मोतिक का बेटा छोड़ करके मरे, इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक सुदुसुल वला लिल अब वल बाकी लिल इब्न, वला का सुदुस बाप को मिलेगा और बाकी किसको मिलेगा, बेटे को मिलेगा। वला का सुदुस बाप को मिलेगा और बाकी बेटे को मिलेगा। वही दलील है, पूरी बात में बयान कर चुका। वला का सुदुस बाप को क्यों मिल रहा है, इसलिए कि बेटे की मरने की सूरत में औलाद मौजूद हो तो बाप का हिस्सा कितना होता है, सुदुस में ही मिलेगा उसको, समझे, महरूम नहीं होता है। हाँ, बस इतना है कि बेटा और बाप दोनों मौजूद है, बेटा ये बाप को असबा बनने नहीं देगा, यानी पोता दादा, तो पोता ये दादा को असबा बनने नहीं देगा, ये सूरत होगी। लेकिन उसका हिस्सा भी ख़त्म कर दे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर उसको मिलेगा। ये उनका कौल था। हमारे ने क्या, वहीदा अबी हनीफा और मोहम्मद, इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक है अल वला कुल्लुहु लिल इब्न, पूरा माल किसको मिलेगा, बेटे को। वला शै लिल अब, बाप को कुछ नहीं मिलेगा। वजह साफ जाहिर है क्या कि यहाँ मोतिक जब मर रहा था तो बाप को हम कितना दे रहे थे, सुदुस। ये सुदुस क्यों दे रहे थे, असबा होने के एतबार से या
हिस्सा दे रहे थे। सुदुस हमको क्यों दे रहे थे? हिस्सा दे रहे थे। असहाब फर्ज में से हमने उसको शुमार किया था, असहाब फराइज में से, और सुदुस दिया था, है ना। और रही बात अब जबकि मोतिक का गुलाम जो आज़ाद शुदा वो मर रहा है, तो उसका माल हिस्से के तौर पर बट ही नहीं रहा है। उसका माल किस तौर पर बट रहा है? असबा के तौर पर बट रहा है। तो जो असबा माल अब गोया कुल किसका माल है? जो आज़ाद शुदा है उसके कुल माल की हैसियत क्या हो गई? हिस्सा या असबा? तो जो असबा का माल हो असबा को मिलेगा, है ना। हिस्से के तौर पर होता तो बेटे को भी मिलता, बाप को भी मिलता, अलग बात थी। लेकिन यहाँ जब असबा के तौर पर मिल रहा है तो सिर्फ बेटा असबा होगा, है ना। यहाँ असहाब फराइज तो देखना ही नहीं हमको, समझ बात करी। वाला तरह का इब्नल मोतिक व जद्दहु, देखो यहाँ बाप और दादा का एक फर्क और हो गया इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक, है ना। अब अगर कोई मोतिक का बेटा छोड़े, मोतिक का दादा छोड़े, नहीं समझे? पूरी बात है ना ध्यान में। आज़ाद गुलाम ये जो था ये मरा, मोतिक मौजूद नहीं, मोतिक का दादा है और मोतिक का बेटा है, तो कहते पूरा माल मिलेगा बेटे को, दादा को कुछ नहीं मिलेगा। ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ क्या होना चाहिए था? सुदुस मिलना चाहिए ना। तो कहते आप जब ये ज़ाब्ता निकाल रहे हैं तो इस तौर पर दादा का हिस्सा है ही नहीं कुछ। अब तक दादा का हिस्सा कुछ पड़े? है कुछ? दादा का हिस्सा कुछ पड़े? कुछ पढ़े? तो बोलो कुछ पढ़े हो तो। बाप की अदमी मौजूदगी में दादा कितना पता है? तो याद करो ना यार। देखो मैंने कह दिया दादा कुछ हिस्सा है ही नहीं, तो सब खामोश हो रहे। तुम लोग इसका मतलब हालात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हो। चलो, तो अगर मोतिक का बेटा और उसका दादा छोड़े तो कुल माल बेटे को मिलेगा, और इसमें गोया इमाम अबू यूसुफ का भी इत्तेफाक है। ठीक है, ये सूरत हो गई। मसला बयान कर दिया इस बात का। अब एक बात चूंकि आ गई, क्या? मौला लताका की, और उसमें ये भी समझ लीजिए आपके कोई ना हो तो वही मौला लताका वारिस होता है ना। तो उसकी मिसाल भी पेश कर दे रहे हैं, है ना, कि कोई मर गया, उसका कोई असबा नहीं है, वारिसीन को तो मिलेगा ही, है ना। देखो मौला लताका वगैरह की बारिश कब आती है? रद्द से क्या बोलते हैं पहले, समझे? कि अगर मौला लताका भी ना हो तब रद्द किया जाएगा, अगर मौला लताका मौजूद हो तो रद्द करने की ज़रूरत उसको मान मिल जाता है ना। वो तरतीब देख लो आप, इसमें तरतीब जब आप देखोगे शुरू में, देखो सुम्मा बिलस्बती मिन जहती सबब हो मौला लताका सुम्मा असबत वाला तरतीब सुम्मा रद्दो, है ना। सुम्मा रद्दो तो वह रद्द से पहले मौला लताका तक जाना है हमको, है ना। वो तरतीब बिल्कुल याद रखना, उसी तरतीब से है, ठीक है। तो पता ये चला कि एक मिसाल फर्ज कर रहे हैं। मिसाल को पहले ज़ुबानी सुन लो। 3 बहनें हैं, ठीक है। उनका बाप जो है वो गुलाम है, ठीक। इन 3 बहनों ने अपने बाप को आज़ाद करा लिया, कैद होकर के चला गया था, गुलाम हो गया था। इन 3 बहनों ने आज़ाद करा लिया। जब आज़ाद करा लिया उसको, तो आज़ादी के बाद अब इंतकाल हुआ बाप का, तो बाप ने वारिसीन जो छोड़े हैं वो कितने हैं? 3। तीनों बहनें कितना पाएंगी? 16 साल पाएंगी। तीनों बहनें कितना पाएंगी? और 1 सुलुस माल बचेगा। तो ये 1 सुलुस माल जो बचेगा ये रद्द किया जाएगा, लेकिन रद्द से पहले इस बाप को आज़ाद करने वाले असबात हैं, बेटियां आज़ाद न की हैं तो आज़ाद करने वालियां हैं, लिहाजा अब 1 सुलुस इनकी आज़ादी के एतबार से इनमें तकसीम होगा। गोया 2 सुलुस इनका हिस्सा होगा
एक सुलुस आज़ादी वाला होगा। अब फर्क क्या पड़ेगा, अगर 30 रुपये में बाप आज़ाद हुआ है, तीनों बहनों ने 10-10 रुपये मिलाया है, तब गोया कुल माल को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, काम हो गया बराबर, क्योंकि हिस्सा भी बराबर है बहनों का, असबा भी बराबर हो रही हैं सब। लेकिन 30 रुपये में बाप आज़ाद हुआ, एक बहन ने 20 रुपया दिया, एक बहन ने 10 रुपया दिया, एक बहन ने कुछ नहीं दिया, तो जो सुलुस बचेगा कुछ न देने वाली का उसमें कुछ हिस्सा नहीं होगा, समझे। और जिन्होंने कुछ दिया है उनका उसमें हिस्सा हो जाएगा। कितना होगा, 3 टुकड़ों में बांटा जाएगा एक सुलुस को, 2 टुकड़ा दिया जाएगा 20 रुपया वाली को, 1 टुकड़ा दिया जाएगा, समझ के पूरा मसला है। 10 वाले को दिया जाएगा। हाँ, अब उसी को बयान करते हैं, लेकिन पहले ज़ाब्ता बयान कर देते हैं। वम मलका ज़ारहमिन मुहर्रमिन मिन्हु उतिक़ा अलैहि, जो किसी ज़ू रहम महरम का मालिक हुआ उस पर वो आज़ाद हो जाएगा। इस हदीस को आप पढ़ चुके होंगे उसूल शाशी में भी, है ना, कि बहरहाल थोड़ी देर के लिए सही मिल्कियत होती है, तब वो आज़ाद होगा। वो यकून वलाहु लहू, और आज़ाद करने वाले के लिए उसका वला होगा बेक़द्रिल मिल्क, मिल्कियत के एतबार से, कि जितना जिसकी मिल्कियत साबित हुई। वो ये 30 रुपये में 2 बहनों ने मिल करके बाप को आज़ाद कराया, तो इसका मतलब हुआ कि पुराने वाले मालिक से इन लोगों ने ख़रीदा, बाप पहले इनकी मिल्कियत में आया, जैसे ही इनकी मिल्कियत में आया ज़ू रहम महरम वाला ज़ाब्ता जारी हो गया, फ़ौरन वो आज़ाद हो गया। तो इनकी मिल्कियत साबित होगी तब ना आज़ाद होगा, हवा में तो आज़ाद नहीं हो जाएगी, पूरी तकरीर वहाँ हो जाती है उसूल शासी, है ना। तो अब जो जितने का मालिक होगा, जो जितने की बहन मालिक हुई, उसी एतबार से उसको वला में से हिस्सा मिलेगा। उसी कते में कौन वला लहू बेक़द्र मिल्क, उसको वला उसी को मिलेगी मिल्कियत के एतबार से, आज़ाद करने वाले को। मिसाल बयान करें, का सलासे बनाते हैं, जैसे कि 3 बेटियां हैं, लिल कुबरा सलासुना दीनारा, बड़ी वाली के 30 रुपये हैं और सुगरा के 20 रुपये हैं। फश्तरता बाहुमा बिलखमसिन, उन दोनों ने अपने बाप को खरीद लिया कितने में, 50 में। सुम्मा मातल अब बाप का इंतकाल हुआ, वह तरका शैअन, और कोई चीज़ उसने छोड़ी, फल सुलुसान बैनहुन्ना असलासन, तो अब सुलुस 2 सुलुस उन तीनों के दरमियान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। बिल फर्ज, किस एतबार से, हिस्से के एतबार से, जो उनका सिहाम है, हिस्सा जो उनका। वल बाकी, और जो बाकी एक सुलुस बचा वो असबा को मिलेगा। कौन, वो मौला लता का 2 बहनों, बैना मुश्तरतील, अब बाप को खरीदने वाली 2 बहनों के दरमियान 2 खुमुस के एतबार 5 खुमुस के एतबार से तकसीम हो जाएगा। 5 खुमुस क्यों, एक बहन का 30 रुपये, एक बहन का 20 रुपया, टोटल हिस्से 5 बने ना, 3 और 2 मिल करके। सलासत अखमासी, उस 5 खुमुस में से 3 खुमुस मिलेगा जिसका 30 रुपया था उसको, कुबरा को, और 2 खुमुस मिलेगा जिसका 20 रुपया था यानी सुगरा को। वह तस्ह मिन खमसतिन व अरबईन, और मसले की तस्हीह कितने से होगी, 40 और 5 45 से होगी। ज़ुबानी तौर पर पहले एक मरतबा सुनो इसको, ज़ुबानी तौर पर, ठीक है, फिर मैं भी बना करके भी आपको दिखाता हूँ। जैसे 3 बेटियां हैं, वो मर गया, 3 बेटियों का हमको सुलुस देना है, तो सुलुस देने के लिए हमको कितने से निकालना पड़ेगा मसला, उससे कुछ नहीं समझ में आएगा। सुलुस देने के लिए हमको मतलब मसला कितने से बनाना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से हमने मसला बनाया, हमने 2 दे दिया, सुलुस दे दिया किसको, तीनों बेटियों को, ठीक है, और एक हमारे पास अभी बचा हुआ है, वो बाद में बांटेंगे हम। 2 जो हमने दिया है 3 बेटियों को, तो लफड़ा हो जाएगा ना, कसर हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं मिला, सबको कामिल नहीं मिला ना। 2 रुपया दे करके कहा तुम लोग तीनों बांट लेना, तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अब इसमें तस्हीह की नौबत आएगी, और तस्हीह की नौबत यह आएगी कि 2 जो है वो हम देखेंगे कि हिस्सा है 2, आदमी लेने वाले हैं 3, इन 2 और 3 में तबायुन है, आगे चल करके इसकी बात आएगी। 2 और 3 में क्या है, तबायुन है।
तो अब 3 को सीधे हम ऊपर ले जाएंगे। मसला कितने से बनाया था हमने? 3 से। मसला कितने से बनाया था? 3 से। 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और दोनों को एक दूसरे में ज़रब देंगे। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 जो है ना, उस 9 से तीनों बहनों का हिस्सा अब निकल जाएगा। क्यों? 9 का 2 सुलूस कितना होता है? 6। 6 को 3 हिस्सों में बांटो, हर बहन को 2-2 मिल जाएगा। तो हर बहन को 2-2 मिल गया। अब हमारे पास कितना बचा? 6 चला गया तो 3 बचा। वो 3 को अब हमें 2 बहनों में बांटना है। किस तौर पर? 5 हिस्सा करके। 3 5 हिस्सों में बनेगा ही नहीं, है ना? तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे? अब हमारे पास है 3 रुपया, लेने वाले हैं 5 लोग, मिसाल के तौर पर 5 हिस्से हैं ना, 2 5 लेने वाले होंगे। नहीं हो पा रहा है तो हम 5 को फिर उठा के ऊपर ले जाएंगे। कहाँ? पहले हम 3 को ले गए थे ना, 3 तिया 9 किए थे। अब 5 को ले जाएंगे और ले जा करके हम गोया ज़रब देंगे। तो 9 हुआ था, 5 हमने पहुंचाया ऊपर, तो 9 बचे 45 से मसले की तस्वीर हुई। समझे? अब 45 हो गया। अब 45 होने के बाद फिर हर एक को हम हिस्सा देंगे। हमने कितना दिया वहां पर? 45 हो गया टोटल ना। आखिरी ज़रब कितने दिया है? आखिरी ज़रब हमने 5 में दिया है, शुरू ज़रब 3 में दिया है, आखिरी ज़रब 5 में दिया है। तो 5 को हर बेटी के 2-2 जो हिस्सा मिला है ना, उसमें ज़रब दो, तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 5 दूना 10, 10 20 और 30, 2 हिस्सा मिला था। 5 को 2 में ज़रब दो, 5 दूना 10, ये 10 सबका हिस्सा हो गया। टोटल कितना माल खत्म हो गया हमारे पास से? 30। बचा कितना? 15 बचा है। 15 बचा है ना दी। अब उधर जो था हमारे पास कितना बचा था? 3 बचा था तकसीम करने के लिए, ठीक है। अब उस 15 को हम 3 पर जब तकसीम करते हैं तो कितना होता है? तकसीम करते हैं, हैं? 5-5 न बनेगा, है ना? तो गोया कि 15 को हम 3 पर तकसीम करते हैं तो 5 बनेगा। इससे समझ में आया कि हमको 5 हिस्सा निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं, 5 जगह तकसीम करना पड़ेगा। और 5 जगह जब तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा बनेगा 3। एक हिस्सा कितना बनेगा? 3। 3 बचे 15। अरे भाई, जब हम 15 को 3 पर जब हमने तकसीम किया और वो ख़त्म हो गया, समझ में आ गया ना कि 3 जो है वो एक हिस्सा बना 5 में से। अब इसी में हमें 2 हिस्सा देना है 20 वाली को, तो 3 दूना 6, उसका टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 6 16, है ना? और 3 हिस्सा देना है हमको, जो 30 रुपये दी थी उसको, तो 3 तिया 9 देंगे उसको, उसका कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। तो एक बेटी को मिलेगा 19, एक बेटी को मिलेगा 16, एक बेटी को मिलेगा 10। 10 किस बेटी को मिला? जिसने कुछ पैसा नहीं दिया था खरीदारी, है ना? और 19 किसको मिला? जिसने 3 हिस्सा लगाया था। 16 किसको मिला? जिसने 2 हिस्सा लगाया था। ये हो गई पूरी तकसीम। समझ गए पूरी? उसको बगौर सुन लेना। मैं इसको फोटो लेकर के, क्योंकि टाइम हो गया है, और डाल भी दूंगा इंशाल्लाह, समझे? तो उसमें इसको इशारे से बता भी दूंगा, ठीक। असल में ज़ुबानी इसलिए बताया हूँ, बहुत से लोग सिर्फ ज़ुबानी ही सुनेंगे भी।